Very glorious morning to all of you. This is your English teacher Gaurav from Bhaironath Inter College Varanasi. Welcome to you in my YouTube channel that is Pioneer on Move. My dear student, today I come to take your new chapter that is The Sound of Music. My dear student, this chapter is divided into two parts and the first part's name is Evelyn Glennie Listen to Music Without Hearing It. So let me start the chapter. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. Rush hour crowds justly for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for teenagers fresh for Scottish form. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Evelyn Glennie's loss of her hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her uh, by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of a gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly look black, says Evelyn. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Probst spotted her potential. He began by tuning two large drums by different notes. Don't listen through her ears, he would say. Try to listen it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I would feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she would sense certain notes in a different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determined and hard work. She never looked back from that point onward. She toured to United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. She gradually moved from the orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. So, my dear student, ये 4 पैरा आज हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा मैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और जो फर्स्ट ये चैप्टर आपका 2 भाग में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट का नाम है एवलाइन ग्लेनी लिसन टू म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट।
आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कोई एक व्यक्ति है, एक लड़की है जिसका नाम है एवलाइन ग्लेनी। लिसन्स टू म्यूज़िक, वो क्या कर रही है, म्यूज़िक को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कोई म्यूज़िक को सुनेगा बिना सुने, ऐसे कैसे हो सकता है। म्यूज़िक को कोई कानों से ही तो सुनता है, और बिना सुने वो किसी भी म्यूज़िक को कैसे सुन सकता है। तो लेट अस मूव। बिफोर वी रीड, God had taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये जो लड़की जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया यहाँ पर, एवलाइन ग्लेनी के बारे में, कह रहा है कि गॉड हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, जो सुनने की शक्ति होती है, वो उससे भगवान ने क्या कर ली थी, ले ली थी। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में उसे उन्होंने कुछ और भी अद्भुत सा दे रखा था। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं उसे वो क्या कर रही थी, वो उसे महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है वो म्यूज़िक को बहुत ही बढ़िया से क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, यानी व्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी। इस अध्याय में, इस चैप्टर में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ना है, हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने क्या किया, वो अपंगता से लड़ा, शारीरिक अपंगता से लड़ा, एंड मेड हर लाइफ सक्सेसफुल, और अपनी लाइफ को क्या बनाया, सफल बनाया। तो मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता दूं, ताकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए कि इस स्टोरी में सर हमें पढ़ना क्या है। जिस दिन ये स्टोरी, एक लड़की है जिसका नाम है एवलाइन ग्लेनी। वो बहरी हो चुकी है, यानी वो सुन नहीं सकती। वो बहरी 8 साल की उम्र में जब होती है, उस टाइम से उसका जो सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी सुनने की शक्ति कम होती जाती है। और जब वो 11 साल की थी तो उस समय उसकी जो सुनने की शक्ति है वो पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो अब ज़रा सा भी सुन नहीं पाती है। और उस समय इसके मन में बहुत इच्छा थी कि वो किसी तरह से वो उस हर चीज़ को सुने। वो एक्चुअली उसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, और म्यूज़िक के शौक़ को वो ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी। अब म्यूज़िक बिना सुने कोई कैसे उसको बजा सकता है, तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी कुछ समय तक तो उसने कोशिश किया अपने आप को कि वो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से उसको छुपाने का, लेकिन ये बातें ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाई। और फाइनली ये सबको पता चल गया कि इसके अंदर ये कमी है, यानी वो कोई भी चीज़ सुन नहीं सकती। उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर, सब लोग उसे एडवाइस देते हैं कि तुम हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करो। आप जानते होंगे हियरिंग एड्स, जो कुछ लोगों को देखा होगा, जो अपने कान में कोई मशीन सा लगा के कोई चीज़ सुनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हियरिंग एड्स कहते हैं। तो उसके थ्रू लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि आप हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करो और फिर उससे सुनो। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी माँ, जिनका नाम है इज़ाबेल ग्लेनी, मैं आगे आपको बताऊंगा। इज़ाबेल ग्लेनी ने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी उसे सजेस्ट किया कि भाई आप क्या नाम है, इसको हियरिंग एड्स दीजिए ताकि ये सुन सके। एक इंस्ट्रूमेंट दीजिए, एक मशीन दीजिए जिससे ये क्या कर सके, सुन सके। बच्ची वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। उसकी लाइफ में एक टीचर आते हैं जिसका नाम है रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स ने उसके लिए कड़ी मेहनत की और उसे बताया कि अगर तुम कोई चीज़ सुन नहीं सकती हो तो सुनने की कोशिश ना करो, कानों से सुनने की कोशिश ना करो, उसे महसूस करने की कोशिश करो। और वो बच्ची अपनी टीचर की बातों पे अमल करती है और पूरी तन्मयता से कोशिश करती है कि उन चीज़ों को वो महसूस करे। और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो
उन चीज़ों को जिसको वो सुन नहीं पा रही है उसको वो महसूस कर ले रही है। वो पियानो बजता है, ड्रम्स बजता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर वो बजता था तो वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उसको क्या करती थी, वो महसूस करती थी। तो वो धीरे धीरे उस शक्ति को, जो महसूस करने वाली शक्ति थी, उसको उसने बढ़ाने की कोशिश की और खूब बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि एक वर्ल्ड की सबसे फेमस क्या नाम है, जाइलोफोनिस्ट वो बनी, वो एक प्यूरोकास्ट बनी, वो एक बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाली बनी। हम इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे अपने कई सालों में बहुत सारे अवार्ड्स जीता उन्होंने। उसने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे संघर्ष के बावजूद भी वो अपने आप को इस काबिल बनाई कि अपनी उस एक कमी को उसने दबा दिया और अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के बल पे वो दुनिया में एक नाम रोशन कर सकी। मैंने आपको शायद इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। थोड़ा सा ये फर्स्ट पैरा जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पैरा में जो राइटर ने उसके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताया, उसके बाद सेकंड पैरा से हम लोग उसके फ्लैशबैक में जाएंगे। जैसे कोई फिल्म आपने देखा होगा तो फिल्म में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रेजेंट स्टोरी चलती है, उसके बाद हम बैक में चले जाते हैं। द सेम सिचुएशन इज आल्सो गोइंग हियर। सो लेट अस स्टार्ट। रश आवर क्राउज जस्टली फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहा कि जौसल यहाँ पे एक वर्ड है, जौसल, आप देख रहे हैं जौसल। जौसल का मतलब होता है भीड़ भाड़, सॉरी, जौसल का मतलब होता है धक्का मुक्की। पुश रफली का मतलब होता है किसी को धक्का मुक्की करना है। आप जानते हैं कहीं भीड़ भाड़, ये रश आवर्स क्राउड्स, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे, आप मेला में या फिर आपने प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा भीड़ होता है। तो उस समय के बारे में बात की जा रही है कि रश आवर क्राउड्स, पूरा भीड़ भाड़ था। जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म था, ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, उस पर अपने पोजीशन को लेने के लिए लोग क्या कर रहे थे, जौसल कर रहे थे। जौसल का मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की, स्लाइट का मतलब क्या होता है, स्मॉल। हाँ, तो कह रहा है कि अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। एक छोटी लड़की जो 17 साल से कम की दिख रही थी तो वो 17 साल की, लेकिन उससे भी वो क्या कर रही थी, उससे कम दिख रही थी। वॉज नर्वस, वो क्या थी, वो घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी क्या थी, उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसे महसूस हुआ कि वो ट्रेन क्या कर रही है, आ रही है। जिस प्लेटफॉर्म पे, हम उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो खड़ी थी, जहाँ पर वो धक्का मुक्की हो रहा था, वहाँ पर उसे महसूस होता है कि ट्रेन आ रही है। वो सुन तो नहीं सकती, लेकिन उसे महसूस होता है ट्रेन आ रही है, इसलिए वो थोड़ी घबराई और थोड़ी उत्तेजित सी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर टीनएजर्स फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। अब आपको बताएं, ये आपको एक वर्ड है स्कॉटिश फॉर्म। स्कॉटिश का मतलब क्या होता है, स्कॉटलैंड। ये लड़की जो है वो स्कॉटलैंड के एक रूरल एरिया मतलब स्कॉटलैंड, आप एक देश का नाम जानते हैं, स्कॉटलैंड से वो कहाँ जा रही है, वो लंदन की तरफ जा रही है। वो लंदन के एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, हाँ, एक फेमस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है फेमस, तो एक फेमस, एक प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, एक इंस्टीट्यूट का नाम है। इंस्टीट्यूट मतलब आप जानते ही हैं, कोई शिक्षण संस्थान, वहाँ पर वो जा रही है एडमिशन के लिए। कहाँ पर, लंदन में। और वो कहाँ से जा रही है, स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड, मैंने आपको बताया कि स्कॉटलैंड क्या होता है, स्कॉटलैंड एक देश का नाम है। और वहाँ के रूरल एरिया से, यानी गांव से वो एक अर्बन की तरफ जा रही है। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में। कोई भी बच्चा एक गांव से, एक छोटे गांव से एक बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़े देश में जाता है, एक राज्य में जाता है, तो उसे निश्चित रूप से थोड़ी सी घबराहट तो होती है। तो उसी को वो कह रहा है
कि अ स्लाइट गर्ल वॉज लुकिंग यंगर देन 17 ईयर, एक छोटी लड़की जो 17 साल से कम की दिख रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो घबराई हुई थी फिर भी क्या थी, उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसे उस आने वाली ट्रेन का वाइब्रेशन मतलब उससे कंपन महसूस हुआ। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, उस प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी जो कि लंदन में है वहाँ पर। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया घबराना, घबराहट, फ्राइटनिंग, डॉन्टिंग इनफ, और वो पूरी तरह से घबराई हुई है फॉर एनी टीन एजर, वो कोई भी टीन एजर का मतलब होता है जो बच्चा 13 से 19 साल, 13 to 19, 13 से 19 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं, टीन एजर। 13, 14, 15 जिसमें टीन शब्द का आता है उसे हम क्या कहते हैं, टीन एजर। फॉर एनी टीन एजर्स फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, वो कोई भी जो गांव से, स्कॉटलैंड के गांव से आएगा उसे घबराहट, कोई भी, या कोई स्कॉटलैंड की बात नहीं हो रही, कहीं से भी अगर गांव से आप शहर में जाएंगे तो थोड़ी घबराहट होगी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग यानी जो जूझने वाली, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, ये संघर्षरत जो म्यूजिशियन थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने बहुत मुश्किलातों का सामना किया है दैन मोस्ट, इससे भी ज़्यादा, जो ये ट्रेन आ रही थी, जो ये घबराहट हो रही थी, इससे भी ज़्यादा उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था। सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो क्या हो गई थी, वो पूरी तरह से अब क्या हो चुकी थी, डीफ हो चुकी थी। डीफ मतलब बहरा, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बहरी हो चुकी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks and deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. कह रहा है कि एवलाइन ग्लेनी, ये उसी कैरेक्टर का नाम है जो इसकी प्रोटोगोनिस्ट है, जो जिसके बारे में, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब जो इस पूरे स्टोरी की जो हीरोइन है उसके बारे में हम लोग बात करें कि एवलाइन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो उसका सुनने की शक्ति थी वो क्या था, ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब यहाँ पे वर्ड है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। जो एवलाइन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति थी वो लॉस हुई, यानी ख़त्म हुई, वो धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year ओल्ड एवलाइन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ये बात उसकी माँ जो हैं, करा हर मदर, उसकी माँ रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज, उसने नोटिस किया कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। व्हेन द 8-year-old एवलाइन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की बच्ची अपना इंतज़ार कर रही थी क्या बजाने का, पियानो बजाने का। माय डियर स्टूडेंट, पियानो, सॉरी ये वर्ड है पियानो। जब वो पियानो बजाने के लिए अपना नंबर आने का, यानी कि उसका टर्न आने का वो इंतज़ार कर रही थी एवलाइन, तो उसकी माँ ने उसकी माँ को ये महसूस हुआ कि कुछ न कुछ तो इसके साथ, इस बच्ची के साथ गड़बड़ हो रहा है। दे कॉल्ड हर नेम, वो लोग उसका नाम पुकार रहे थे, जो वहाँ पे स्टेज पर बैठे थे वो लोग उसका नाम पुकार रहे थे। सी डिडंट मूव, और वो आगे नहीं जाती, यानी वो आगे नहीं बढ़ती है। आई सडनली रियलाइज, तब मुझे महसूस हुआ, ये आई किसके लिए है मैं भी बता रहा हूँ। आई सडनली रियलाइज सी डिडंट हर्ड, तब मुझे महसूस हुआ कि वो सुन नहीं सकती। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, ये कौन है, इज़ाबेल ग्लेनी कौन है, ये इसकी माँ है। वो उसकी माँ कहती हैं कि 8 साल की उम्र में जब वो पियानो को बजाने का, अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब उसका नाम बुलाया गया तो वो हिली नहीं, वो मूव नहीं की, तो मुझे एहसास हुआ कि वो अब अपनी सुनने की शक्ति क्या कर चुकी है, खो दी है।
माय डियर स्टूडेंट, ये पियानो क्या होता है आपको शायद पता होगा कि पियानो क्या होता है। पियानो आपने बजाया होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर पियानो क्या होता है, तो लेट मी शो यू व्हाट इज़ पियानो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पियानो क्या होता है। ये देखिए, ये पियानो होता है। पियानो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप इसमें देखेंगे ये देखें, ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपने देखा है? अब ये इस इमेज के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि पियानो किसे कहते हैं। ये पियानो मशीन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पियानो क्या होता है। सो लेट अस कम टू द आई फॉर क्वाइट अ वाइल लेट अस, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कि सेज इजाबेल। For quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कह रहा है for quite while, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए एवलाइन मैनेज टू, एवलाइन कौन है? एवलाइन ग्लेनी की बात कर रहे हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो इस फिल्म की हीरोइन है, इस नाटक की हीरोइन है। कह रहे हैं फॉर क्वाइट वाइल, कुछ देर के लिए एवलाइन मैनेज टू कंसील, कंसील का मतलब यहाँ पर क्या होता है? छुपाना। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए एवलाइन ने उसको छुपाने की कोशिश की, अपनी कमी को, यानी जो उसकी जो वो डिफनेस की शक्ति थी, यानी सुन नहीं पा रही थी, उस चीज़ को उसने छुपाने की कोशिश की ताकि किसी को पता न चले कि वो सुन नहीं सकती। तो कह रहा है कि फॉर क्वाइट अ वाइल एवलाइन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस, कुछ देर के लिए, तो कुछ समय के लिए उसने अपनी बहरेपन की शक्ति को छुपाने की कोशिश की फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, किससे? अपने दोस्तों से और अपने अध्यापक से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. कह रहा है कि बट बाय द टाइम, लेकिन धीरे धीरे, सी वॉज 11, जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डेटेरिएटेड। यहाँ पे डेटेरिएटेड का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? डेटेरिएटेड का मतलब होता है कि कम होना। डेटेरिएटेड मतलब अवनति होना, कम होना, क्षीण होना। कह रहा है कि हर मार्क्स हैड डेटेरिएटेड, उसका मार्क्स धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। वर्सन वर्सन, अब खराब होने लगा। धीरे धीरे उसका जो मार्क्स था वो पुअर होने लगा। हमेशा दिन प्रतिदिन उसके मार्क्स में कमी आने लगी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, यानी जो स्कूल की अध्यापिका थी, और हेड मिस्ट्रेस यहाँ पे प्रिंसिपल को भी कहा जाता है, तो उसकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने अर्ज किया। अर्ज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्ज? अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, उसकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि टू टेक हर, कि उसे ले जाएं टू अ स्पेशलिस्ट। कहाँ पर ले जाएं? स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड, और तब यह पता लगा लिया गया था दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। कह रहा है कि इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब यह मालूमात हो गया था, तब यह पता लगा लिया गया था दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। कह रहा है इम्पेयर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पेयर्ड? वीकेंड। उसका जो कह रहा है कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो क्या हो चुकी थी? कमज़ोर हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसके परिणाम स्वरूप? ग्रेजुअल मतलब ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, नर्व, नर्व का मतलब नसें, और डैमेज का मतलब खराब होना, यानी नष्ट हो जाना। करा एज ए रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब परिणाम स्वरूप। फिर से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, इस तब पता लगा लिया गया था दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसका जो सुनने की शक्ति थी वो क्या हो गई थी? वो
कम हो गई थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसके धीरे धीरे उसके नसों के खराब होने के कारण। दे वर एडवाइज्ड, दे का मतलब यहाँ पर किसको संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पे दे का मतलब है डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे उनके बारे में बात की जा रही है कि दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फिटेड, उन्होंने सलाह दी कि यह सही हो सकती है बाय हियरिंग एड्स, क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करके, एड्स का, हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करके, यानी सुनने वाली मशीन का। एड्स का मतलब माय डियर स्टूडेंट मशीन के बारे में बात की जा रही है कि उस मशीन का इस्तेमाल, सुनने वाली मशीन का अगर वो इस्तेमाल करे तो वो ठीक हो सकती है। एंड सेंड टू स्कूल फॉर अ डे, और कहाँ भेजी जाए, और उसे एक बहरे बच्चों का, जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है वहाँ अगर उसे भेजा जाए तो उसके अंदर सुधार हो सकता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलाइन, एवलाइन कहती है कि तब सब कुछ मेरे आगे क्या हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था उसके आगे, जैसे लग रहा था कि उसकी दुनिया पूरी अंधकारमय हो गई है, उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये केवल एक सिंबॉलिक मीनिंग है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक का मतलब है कि उसकी दुनिया एकदम अंधकारमय हो जाना, यानी कहने का मतलब कि जब उसे ये पता लगा कि अब वो सुन नहीं सकती, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए जब अगर कोई अंग उसका खराब हो जाए और उसे एक बैग पता चले तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो थोड़ा सा डिस्करेज्ड होगा कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलाइन इसको छोड़ने वाली नहीं थी, इसे गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप एक फ्रेज होता है माय डियर स्टूडेंट, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। कह रहा है कि बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलाइन इसे छोड़ने वाली नहीं थी, इसे त्यागने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो दृढ़ थी, वो फॉर्म थी, फॉर्म का मतलब क्या होता है अडिग होना। कह रहा है कि सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो अडिग थी एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक सामान्य ज़िंदगी बिताने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपनी इंटरेस्ट को, अपनी जो रुचि थी किसमें, म्यूज़िक में, उसे परस्यू करने का, परस्यू मतलब आगे बढ़ाने के लिए। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने नोटिस किया अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। कह रहा एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो क्या बजाएगी, जाइलोफोन बजाएगी, और वो वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइड, और उसने भी निर्णय किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने भी ये निर्णय किया कि मैं भी इसे बजाऊंगी। किसे बजाऊंगी, जाइलोफोन को बजाऊंगी। अब जाइलोफोन मेरे बच्चों, जाइलोफोन क्या होता है, ये देखिए, इसको जाइलोफोन कहते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है जाइलोफोन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रॉ ऑफ वुडन बार्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। कह रहा है एक जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो, जो रस्सी से, ऑफ अ वुडन, लकड़ी का होता है, और उस पर मतलब रस्सी होती है, और बार्स मतलब एक डंडा होता है, ऑफ डिफरेंट नोट्स, और उसको क्या किया जाता है, डंडे से उसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। शायद मैं आपको अच्छे से, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से न समझा पाऊँ, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ कि जाइलोफोन क्या होता है। लेट मी शो यू व्हाट इज़ जाइलोफोन। सी दिस इज़ द जाइलोफोन, ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने जो बजने जा रहा है, इसे हम जाइलोफोन कहते हैं। आप देखेंगे कि ये लकड़ी का पूरा बना होता है, और इसमें एक डंडे के थ्रू, एक स्टिक के थ्रू क्या किया जा रहा है, बजाया जा रहा है। आप देखें, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जाइलोफोन क्या होता है। ठीक है, चलिए।
हम लोग यहाँ पर थे कि वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक बच्ची क्या कर रही थी, वो जाइलोफोन। अब आपको मैंने वो वीडियो भी चला के दिखा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलोफोन क्या होता है। तो वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक बच्ची क्या बजा रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने भी निर्णय किया कि वो भी क्या करेगी, उस जाइलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसे क्या किया, डिस्करेज किया, उसे हतोत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। कह रहा है कि लेकिन जो परकुशनिस्ट थे, जो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसे क्या किया, डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स, ये रॉन फॉब्स उनके एक टीचर का नाम है ना। और परकुशनिस्ट क्या होता है, लेट मी शो यू। परकुशनिस्ट, यहाँ पे ये देखें परकुशनिस्ट क्या होते हैं। अ पर्सन हु प्लेज ड्रम्स, एक व्यक्ति जो ड्रम्स बजाता है, द तबला या तबला बजाता है, उसे क्या कहते हैं, परकुशनिस्ट कहते हैं। शायद आपको एक और परकुशनिस्ट भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि परकुशनिस्ट क्या होता है, तबला वादक कैसा होता है। ड्रम आपने देखा होगा, ड्रम जो बजाते हैं ना, वो सॉरी, ये जाइलोफोन का खुल गया। दिस वन इज सॉरी, चल नहीं पा रहा ये वीडियो। तो शायद आपको पता होगा ड्रम कैसा होता है। ड्रम तो ये तो साधारण सी बात है, ड्रम तो आप सबने देखा ही होगा कि ड्रम कैसे बजाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि वो ड्रम जो परकुशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसे क्या किया, डिस्करेज किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो तबला वादक रॉन फॉब्स थे, उन्होंने इसकी पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चा शक्ति, उसकी शक्ति को क्या कर लिया, स्पॉटेड का मतलब पहचान लिया। ही बिगन हर टर्निंग टू, कह रहा है ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम बाय डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, ही बिगन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े जो ड्रम थे उसे उन्होंने बजाना शुरू किया टू डिफरेंट नोट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नोट्स यानी अलग अलग आवाज़ में। नोट्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि अलग अलग स्वर में, अलग अलग आवाज़ों में उसको बजाने की कोशिश की। और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि इसे कानों से मत सुनो। आपको आश्चर्य होगा कि भाई कानों से नहीं सुनेगी तो कैसे, लेकिन वो बहरी हो चुकी थी तो वो कानों से कैसे सुनेगी। आप ये मत सोचिएगा कि सर वो कान से ही तो सुनेगी। जब कोई व्यक्ति अगर बहरा हो जाएगा तो शायद उसकी सुनने की शक्ति नहीं होगी। तो वो इसीलिए उसके जो टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने कहा इसे क्या कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसे सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और चीज तरह से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलाइन, एवलाइन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, तभी मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी मुझे महसूस हुआ, सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द अपर वेस्ट अप। ये देखिए आप यहाँ पर मुझे शायद देख पा रहे होंगे, बहुत दूर से तो नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए ये वेस्ट है, वेस्ट मतलब कमर के ऊपरी हिस्से से। कह रहा है कि जो उसके जो आवाज़ थी, जो तबले की आवाज़ थी, जो ढोलक की आवाज़ थी या जो ड्रम की आवाज़ थी, जो उसकी जो बीट्स थी, बीट्स का मतलब जो उसका जो
हायर नोट्स था, यानी जो तेज़ी से जो बजाया जाता था, यानी तेज़ आवाज़ में, उससे वो अपने कमर के ऊपरी हिस्से से सुन रही थी, महसूस कर पा रही थी, अपने कमर के ऊपरी हिस्से पे महसूस कर पा रही थी। और जो लोअर नोट्स, यानी जो धीरे बज रहा था, जिसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी स्लो थी, उसे वो कहाँ महसूस कर पा रही थी? अपने कमर के नीचे साइड से महसूस कर पा रही थी। तो कह रहा है कि सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे महसूस हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट अप मैंने बताया कि अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से उसे वो जो तेज वाली आवाज़ थी वो कमर के ऊपर से महसूस हो रहा था। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर नोट्स था वो कहाँ से सुनाई दे रहा था? वो नीचे से सुनाई दे रहा था, यानी कमर के नीचे से। फॉर्ब्स की बात कर रहे हैं। फॉर्ब्स कौन? यही रॉन फॉर्ब्स, जो उसके टीचर थे, उनकी बात की जा रही है कि फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। वो उस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को उसे कहा कि ये प्रैक्टिस तुम करो, इस पे क्या करो? प्रैक्टिस करो, यानी बार बार रिवीजन करो। एंड सून, और जल्दी ही एवलाइन डिस्कवर्ड, एवलाइन को ये महसूस हो गया, उसे पता लग गया दैट सी वुड सेंस सर्टेन नोट्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। कह रहा है कि तब उसे महसूस हो गया था कि सी वुड सेंस, वो महसूस कर सकती है, सर्टेन नोट्स, कुछ आवाज़ें, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से। यानी वो आवाज़ को अब सुन नहीं सकती थी, आवाज़ को क्या कर सकती थी? महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कह रहा आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग से एंड बॉडी, और अपने शरीर से, टू साउंड को और वाइब्रेशन को, अपने दिमाग से, अपने शरीर से उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को मैंने सुनने की। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? कंपन। द रेस्ट वॉज सीयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क। और बाकी की चीज़ें थी, जो रेस्ट का मतलब क्या होता है? बाकी जो और चीज़ें थी, वॉज सीयर डिटरमाइंड। सीयर का मतलब होता है कीन, एकदम, जिसमें आप एकदम से लग जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सीयर डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ निश्चय, है ना? दृढ़ निश्चय और हार्ड। और बाकी का जो चीज़ें थी, यानी कुछ चीज़ें तो उसकी शरीर फील कर रही थी, जो यानी अपने मन से, अपने शरीर से उसने किया, और बाकी की चीज़ें उसने अपने दृढ़ निश्चय और अपने हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम से सीखा। आगे, सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, तब से का मतलब जब उसे ये पता लग गया कि अब उसके पास ये पोटेंशियल है, वो अब अपने शरीर से आवाज़ को महसूस कर सकती है, तब से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर टू यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने क्या किया? सी टूर टू यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप सब जानते होंगे, ब्रिटेन को कहते हैं। वो कहाँ गई? वो ब्रिटेन गई विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा तो आप सब जानते ही होंगे। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बच्चा? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन जो होते हैं, उनके ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो कह रहा है कि सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, वो तब, उसके बाद से वो पीछे कभी नहीं मुड़ के देखी। सी टूर टू यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, और वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन गई युवा ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, सी वॉज 16, अब वो कितने वर्ष की हो गई थी? 16 वर्ष की हो गई थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उसने ये निर्णय किया, जब वो 16 साल की हो गई थी, तब उसने वो निर्णय किया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। कह रहा है कि सी ऑडिशन क्या होता है बच्चा? लेट मी शो यू। gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough। कह रहा है कि एक ऐसा परफॉर्मेंस देना, एक छोटा सा अपना परफॉर्मेंस देना, ताकि जो डायरेक्टर है वो
को डिसाइड कर सके कि आप वाकई उसके काबिल हैं कि नहीं। इसको और अच्छे से थोड़ा सा हम अगर आपको समझाएं तो जैसे हम लोग टीचर हैं, आप सबका एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चे आप जब एग्ज़ाम देते हो तो टीचर आपको आपकी कैपेबिलिटी के आधार पे आपको उस स्कूल में एडमिशन देता है कि आप उस स्कूल के लिए फिट हैं या नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिशन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक क्या है बच्चा, आपको किसी को याद है? ये क्वेश्चन है, कोई बताएगा कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक क्या है? आपको याद होगा जब मैं स्टार्ट कर रहा था आपको पढ़ाना, जब मैंने फर्स्ट पैरा पढ़ाया था, यहाँ देखिए फर्स्ट पैरा, वो जब ट्रेन के पास में खड़ी थी तो वहाँ जाने के लिए जो जहाँ पर वो वेट कर रही थी कि उसे कहाँ जाना है, उसे ये देखिए प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, यहीं पे जाने के लिए वो खड़ी थी ना। तो उसी की बात की जा रही है कि उस यहाँ पे देखें, हम फिर से आते हैं अपने चैप्टर पे। कह रहा है कि सी ऑडिशन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कहाँ पर है, लंदन में है, जो कहाँ पर है, लंदन में है, वहाँ पर उसने ऑडिशन किया, अपना मतलब एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दिया एंड स्कोर्ड, और क्या किया, अंक प्राप्त किए, स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, कितना, सबसे ज़्यादा नंबर पाया इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उस एकेडमी के, कौन सी एकेडमी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, उस एकेडमी में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी ऑर्केस्ट्रा में मैंने बताया कि कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, अलग अलग तरह का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र होता है। तो वो उस ऑर्केस्ट्रल ग्रुप से, यानी कई लोगों के ग्रुप से वो कहाँ क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है वो अकेले परफॉर्म, सोलो का मतलब अकेला होता है, वो अकेले परफॉर्म करने लगी। एंड एट द एंड, और अंत में ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसने जो सबसे ज़्यादा मिलने वाले अवार्ड, यानी सबसे कीमती जो अवार्ड होते हैं उनको उसने क्या किया, अपने नाम किया। कैप्चर्ड का मतलब अपने पास लिया, उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए। ठीक है, तो ये 4 पैराग्राफ मैंने बच्चा आप लोगों को कोशिश की समझाने की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इंग्लिश में नरेट कर दूं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, जो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर। और हाँ, एक बात और बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके और मैसेजिंग करके आप मुझसे कहते हैं कि सर आप वर्ड मीनिंग नहीं लिखाते हैं। तो बच्चा, आप अगर वीडियो जब भी आप देख रहे होंगे आपके पास में, तो आप देख रहे होंगे कि मैं हर पर्टिकुलर वर्ड को आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ। तो आप जब इसको ध्यान से सुने, तो आप इस चीज़ केवल सुने ही नहीं, अपने पास कॉपी और पेन को रखें। और जब भी मैं आपको ये चैप्टर, आप इस वीडियो को देखें पर्टिकुलर, या किसी भी मेरे वीडियो को देखें, तो मैं हर वर्ड की लगभग मीनिंग बताते रह रहा हूँ और साथ साथ बताते जा रहा हूँ। तो आप उसे कॉपी पे, पेन पे, वीडियो को पॉज करके, पॉज का मतलब होता है रोक रोक के, आप उस मीनिंग को लिख लिया करें। और इसके PDF, कुछ बच्चों के पास मैं मानता हूँ कि बुक नहीं है, तो वो क्या करें कि इस वीडियो को इसमें मैं PDF डाला हूँ, तो PDF में आप उस पर्टिकुलर मीनिंग को लिख लें कि ये मीनिंग आपको जो नहीं आ रही है वो लिख लें। और जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें, जब आप वीडियो ये सुन रहे हैं तो उसमें मैं मीनिंग को भी बताते जा रहा हूँ, तो आपको ये इजी होगा। वर्ड मीनिंग अलग से मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आपको हिंदी में शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत जो भी मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, and this part is divided into 2 parts. The first part's name is Evelyn Glennie's listen to sound without hearing it. Means there was a one character whose name is Evelyn Glennie, and Evelyn Glennie,
and she listened all the sounds without hearing. Actually, it means that you all guys are mesmerized to hear it, that how it is possible that someone listens sound without hearing, how it is possible. So as you move further, you will get notice that how it possible. uh, so before you read, let me start. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Means that God has taken one of the capability of the protagonist. Her name is Evelyn Glennis, and once He just took away her one capability, then after some time He just given her something extraordinary, which is not comparable. What we hear, see, feels. Here the writer discuss that we all are hear everything. Everything means through our ear power, through the ear we just hear everything what is going on our surroundings, but it's not with her. Actually, she did not hear everything, she only feels for more deeply than any of us. Means that she hears everything, she did not hear, she feels everything by her senses, and that's why she expresses music so beautifully. Means this is the reason that due to her determination, due to her firm determination, she expresses music with so beautifully and so, with a so excitingly. Now, the writer said that read the following account of a person who fought against physical disability. A person who is here, person means we are talking about the Evelyn Glennie. She just fought against her physical disability. What is the physical disability here? Here we are talking about the hearing capability. Means she is unable to hear anything, and made her life success story. And this is the reason. When she could not hear anything, by her feeling, by her senses, she just expresses music so beautifully, and that's made her success in the uh, in this world. So from here the chapter is started. Ruth rush our crowd justly for position on the underground train platform. Means here there was a crowd. The writer is discussing that there was a crowd, and everyone was jostling one another. Everyone was jostle one another, and from there was a girl. That girl was a slight girl, looking younger than 17 years. Means this girl was 17-year-old, but she did not resemble 17 year. Actually, she resembled less than 17, and was the writer was talking, she was a nervous and excited both. Means nervous. Why she was a nervous? Just because of she was come from the Scottish form. She just belong from the Scottish family. She just come from the rural area, and that's why she just nervous. And what the reason of her excitement? The reason of her excitement was that she is just going to get her admission in prestigious Royal Academy of Music in London. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. Here, the writer is discussing that this excitement and nervousness which comes with her at this time, more than this, she has just faced the challenges, and that was. She was profoundly deaf. Means she was completely deaf, and she just due to her deafness, she just faced so many challenges in her life, and made herself in success among all of us. Evelyn Glennie's lose her hearing had been gradual. Here the writer is talking that she just at the time, at random, means
At once she did not lose her hearing capability, she lose her hearing capability gradually, means day by day the capability of hearing was just lost from her. And her mother remember that once when she just waiting to play piano, once she just waiting to play piano, and when she saw that there was a one girl who is just playing piano, she also waited to play piano, but someone called her name and she didn't move. At that time her mother decide find out that she is unable to hear. For quite a while, Evelyn managed to conceal, and for some time, she just tried to conceal. She just tried to hide herself from the others that she can hear. Actually, Evelyn Glennie wants to hide herself, hide her disability that she could not hear. But after some time, when she was 11-year old, at that time her headmistress told her parents that her performance is day by day decreasing and you must have to consult a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired and a result of a gradual nervous damage. And when the specialist found it, when they just went to the specialist, and the specialist told to the parents that her that her nerves was damaging, means she gradually she is just losing her nerves was just her nerves was weakened and weakened, means day by day it was decreasing, and this is the reason that she could not hear anything. They were advised, means here they were advised that she should be fitted with the hearing aids. The doctor advised her parents that this little girl could be good if she used hearing aids, and sent to school for a deaf, means the doctor also advised to took this girl and admitted this girl in the deaf children, means deaf school. Everything suddenly looked black, says Evelyn. When she heard about this news that she lost her hearing capability, at that time Evelyn expresses her feeling that it seems to her that everything was black, the world is black, everything was black, that means that her world is now dead. But Evelyn was not going to give up. Here it means that she is firm determined to face all the challenges. She determined to lead a normal life and pursue her interest in music. She at that time she just take a firm decision that she will lead a normal life, and definitely she just took her goal. She just aimed herself that she leads her life in the music. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. Once when she just saw that there was a girl who is just playing xylophone, at that time Evelyn Glennie also decided to play xylophone. Most of teachers here, most of teachers discouraged her, means that teachers as well as everyone just discouraged her that you are unable, you are unfitted for that, you are unable to play piano, xylophone, or any instrument of music. But percussionist Ron Forbes spotted her potential, and there was a one god in her life. There was one god came in her life. His name was Ron Forbes, and he just find out her potential, that what kind of potential she had. He just
he began to tuning two large drum to different notes. Now he just started teaching her. How he started teaching her? Just by taking two drums, and just he just started playing with the different notes. And he just suggested to this little girl, means Evelyn Glennie, that don't listen through your ears. He just suggested that don't listen this music by your ears. He just says, he just told her that you just feel it, not try to listen it, just try to feel it. And suddenly Elaine Glennie says that suddenly she realizes that I could feel the higher note drum from the waist up and the lower one from the waist down. And at that time she realizes that she could hear, she could feel the higher notes from the upper waist and lower notes from the down waist. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different part of body. And soon she also realizes that the whole part of her body could feel, could realizes the different note, different sounds, means she feels different sounds through her whole body. The rest was sheer determined and hard work. And she also added that this is the extraordinary power which was given by her God. And now this was not only she just determined, she was just doing hard work for her for getting for just improving her capability, so that she could stand in the in the world. She could face the challenges of the life. She never looked back from that point onward. Here the writer said that once when she just knows her capability, that she has a power to listen, not to listen, but she can feel the sound. At from that point she just moved forward and forward. She never looked back. She toured to United Kingdom with the youth of orchestra, and from that point she just started to going with the youth orchestra. You know, orchestra is a group of a musician where different kind of music were play. By the time she was 16, she had decided to make music herself. And at that time she just decided that she will also play music. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of academy. And once she decided to took just make her career in the music. And from there she just went to take admission in the prestigious academy, which name is the Royal Academy of Music in London. This is the name of a music, sorry, this is the name of music institute which is situated in London. And she wants to take her admission. And not only just she decided to take her admission, with her firm determination she just scored the highest mark of that academy. Means none one had get such marks which Evelyn has get. She gradually moved from the orchestral work to solo performance, and day by day, with her firm determination, with her hard work, she just improving her personality, she just improving her potential. And from the orchestral group, from the orchestral work, she just started doing solo performance. At the end of a 3 years course, means during 3 years she had captured most of the top awards. Means that ultimately she just got one of the highest award from that academy, which name was Royal Academy of Music in London. So so my dear student,
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और आप सब भी बोर हो रहे थे। आप पिछली भी वीडियो में आपने मुझसे कहा था कि सर वीडियो बहुत लंबा आप बना देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाता है और आपको छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि और थोड़ा सा शॉर्ट हो। हाँ, लास्ट में फिर एक बार वही बात मैं बोलूँगा कि इस कोविड-19 के दौरान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखें। जितना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, उतना हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। हम आप सबसे ही पूरा दुनिया है, समाज है, आप ही भविष्य के निर्माता हो। आप सब अवेयर रहेंगे, दूसरों को अवेयर करेंगे। अगर आप सब खुद नहीं अवेयर होंगे तो दूसरों को आप शायद अवेयर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ अपने हाथों को बराबर धोएं, सैनिटाइज़ करें और बाहर कम से कम निकलें। फिर एक बार टॉपिक की बात करें तो आपको इसमें से अगर जो भी कुछ समझ में नहीं आए, प्लीज़ इसे आप मुझसे पूछें। और साथ ही साथ आपके कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चे मुझे कहे कि सर मेरे पास फ़ोन नहीं है या वो नहीं देख पा रहे हैं मेरे सेशंस को, तो प्लीज़ उन तक अगर आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंच जा रहा है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको सर्कुलेट करने की कोशिश करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर टुडे।